Good morning, friends. I once again welcome you in our today's class. Our today's online class is on the book Vistas, our second book, which is the supplementary reader book. And we will start today a very important lesson and a very amazing story. And the name of the lesson is The Enemy by Madam Pearl S. Buck. Dear friends, you know that we have two books. First one is The Flamingo, and we have three lessons from it with a bunch of poems, two poems. And from the second book, with the modified syllabus, we have some 5 6 lessons left, and we will start today the very fresh lesson and very wonderful lesson, The Enemy. So before beginning the lesson, I would like to share certain views regarding lesson. Dear friends, this lesson is the largest lesson you see, and it runs into more than 24 to 25 pages. So we have to take it in three different parts, and I have made my plans to finish it in three different parts. But believe me, that each part, though the lesson is very lengthy and a detailed description of a very simple story, but believe me, this lesson is very wonderful with all kinds of values, with all kinds of you see human pains, human sufferings, human kindness, and all notable values that a human being faces in his life, that all are included in this one story. This is the story of Dr. Sadao, a Japanese doctor, and his wife Hana. You can say Hana, you can say Hana. They both are Japanese, live in a Japanese city. Dr. Sadao is an expert doctor of Japan, worked for the Japanese army. He is one of the brilliant doctors of Japan, and he worked for the brilliant army. And the most important thing about this lesson, dear friends, is that this lesson is set during the World War II. And you all know that the World War II had been fought during between 1939 to 1945, and it was fought between two axes. You see, two axes means A axis, B axis. You can say the first set, the A axis, you can say, is led by England, that is Britain, then France, and America and Russia. And the second axis, that is B axis, you can say, it is led by Germany. You must be knowing the name of Hitler. Second one is Italy. You must be knowing the name of Mussolini. And third one is Japan. So in between two group of countries, this World War II had been fought, and the story is set during that period. So it is the time of World War II, and Japan is at war with America. It is clear? Yes. Then what happened? An American prisoner of war gets washed away to the doorstep of a Japanese doctor, that is Dr. Sadao. He was a surgeon also,
And the choice is very hard for Dr. Sadav and his wife Hannah. Whether should they hand him over to the police or save him from dying, because he was in a acute dying condition. तो डॉक्टर सदाव के लिए समझ पाना बड़ा ही कठिन था कि उसको पुलिस के हवाले कर दे, आर्मी के हवाले कर दे, क्योंकि वो वार प्रिजनर है, ठीक है, और अमेरिकन सोल्जर है. तो अमेरिकन्स मतलब एनिमीज. इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ देयर पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति का सवाल है. तो बड़ी सुंदर सी स्टोरी इसमें है. उनकी कश्मकश, उनकी ड्वेल यूसी मेंटेलिटी, उनका टशन, आइडियोलॉजीज के बीच में टशन, उनके नौकर जो उनके खिलाफ हो जाते हैं, उनके बच्चे क्या बोलते हैं, लेकिन फिर भी जो है मतलब एक अलग ही कहानी को बोया है, पिरोया है पर्ल एस बक ने इस पोएम में. तो आप जब इस स्टोरी को पढ़ेंगे आपको बड़ा ही जो है अमेजिंग लगेगा. सारी ह्यूमन क्वालिटीज़ आपको इस लेसन के अंदर देखने को मिलेगी. डॉक्टर सदाव के रूप में एक बहुत ही उम्दा हीरो हमारे सामने पेश होता है. वो प्रिजनर का भी बहुत ही बढ़िया इसमें रोल है, और एक फिल्म की तरह स्टोरी, एक कोई रिच क्लास का सीरियल कोई है इसके जैसे हमारे सामने ये स्टोरी आती है. सो वी विल सी डियर फ्रेंड द एनिमी by our Vistas book, class 12th. And this is Madam Pearl Buck. She is the writer of this story. So we will start part 1. So we don't have too much time because we have to complete the stories in 3 different parts, and in 3 consecutive days we will see the story, and I shall send the video to you also. So the enemy tells the story of a Japanese doctor who hates Americans because of his patriotism, as America and Japan were at war. But remember one thing also कि ये जो डॉक्टर सदाव है ये अमेरिका में पले बड़े हैं. But his father was very strict regarding the rituals, regarding the Japanese etiquettes, you see, and the Japanese morals and all. But he sent his son to study, you see, the education of MBBS, you can say, or he became a surgeon there. The enemy tells the story of a Japanese doctor who hates Americans because of his patriotism, as America and Japan were at war. One day an American prisoner of war is washed ashore. Ashore means किनारे पर आ जाता है. In front of a Japanese doctor's house. The soldier is wounded and has evidently escaped from prison. वो जो लड़का होता है, बाद में हमको उसका नाम भी पता चलेगा, वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर होता है. क्या होता है? प्रिजनर ऑफ वॉर. और ये जो प्रिजनर ऑफ वॉर है वो वहां से छूट कर जो है यहां पर आया है. Now, an American trained Japanese surgeon working in Japan during World War II pulls a wounded American sailor, presumably an accept POW. POW means prisoner of war, from the surf behind his home. Against the advice of his wife, he hides the sailor, operates on him, and preserves his life temporarily. Becoming fearful of his family, he reports what he has done to the patient, an official in the Japanese military. And the story has some kind of suspense also. Very hitting comments, very nice, you see, the dialogue delivery, the setting is very nice, and the entire you see entire story is like a screenplay of a film. So we will hit the story.
द एनिमी बाय पर्ल एस बक. So it is the time of the World War. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? So ये इस डायलेमा के बारे में ये पूरी की पूरी स्टोरी है. क्या उसको उस प्रिजनर ऑफ वॉर को सौंप देना चाहिए उसको, या उसको उसकी जान बचानी चाहिए. तो देखिए हम स्टोरी पढ़ते हैं. डॉक्टर सदाओ होकीज हाउस वॉज बिल्ट ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट वेयर एज ए लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड. एक जापानीज कोस्ट के ऊपर, कोस्ट समझते हैं बीच, सी बीच, समंदर के किनारे का एरिया, वहाँ पर डॉक्टर सदाओ होकी का घर बना है. द लो स्क्वायर मतलब वो पुरखों का घर है उसका, उसने बोला है ना कि उसके फादर ने बनाया हुआ घर है. द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबाउ ए नैरो बीच दैट वॉज आउटलाइंड विथ बेंट पाइन्स. बड़ा ही सुंदर सा बड़ा सा घर है और सामने पाइन्स के पेड़ लगे हैं. As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare feet as he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts. डॉक्टर सदाओ बहुत अच्छे से वो पाइन्स के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे. ठीक है ना, हमारे जैसे नीम के पेड़ कॉमन होते हैं, बबूल के पेड़ कॉमन होते हैं उसी दोस्तों, वैसे पाइन के पेड़ जो है फॉरेन कंट्रीज़ में आपको कई जगह जापान में, अमेरिका में यू सी, और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, एशियन कई सारे कंट्रीज़ में भी देखने को मिलेंगे. तो जैसे साउथ सीज में कोकोनट के पेड़ों के ऊपर लोग चढ़ जाते हैं बेयर फीट, वैसे पाइन के पेड़ के ऊपर डॉक्टर सदाओ आसानी से जब बच्चे थे तब से चढ़ते हैं. His father had taken him often to the islands of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side. वो उसके फादर जो है वो साउथ सीज के आइलैंड्स पर जो है उनको अपने बेटे को ले जाते थे, और हमेशा जब भी वहाँ जाते थे उनको वो एक बात ज़रूर बोलते थे. कौन सी बात थी वो? दोज आइलैंड्स यॉन्डर मीन्स देयर. वो देखो वहाँ पे जो आइलैंड्स तुमको दिख रहे हैं, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान. ये सारे के सारे जो है जापान का फ्यूचर है. जापान के सक्सेस जो है, जापान का जो भविष्य है, वो इन आइलैंड्स में ही छिपा हुआ है. मतलब काइंड ऑफ पैट्रियटिज्म हमको इनके अंदर देखने को मिलती है कि जो जापान के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, और इसी वजह से वो उनको सर्जन बनने के लिए अमेरिका भी भेजते हैं. तो सदाओ पूछते हैं कि वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम. वो आइलैंड्स अगर हमारा फ्यूचर है तो हम वहां से कहाँ जा पाएंगे? सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली. तो उसके फादर जवाब देते हैं, हु नोज, किसे पता, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर. वो हमारी लिमिट है, वो हमारी बाउंड्री है, ठीक है, और उसके आगे हम कहीं पर भी जा सकते हैं. तो उनको क्रॉस हमको जरूर करना है. तो एक साम्राज्यवाद की स्थिति है यहाँ पे. एक पैट्रियटिज्म तो उनके अंदर है ही, लेकिन जापान का विस्तार करने वाली बात जो है उसके फादर यहाँ पे बोलते हैं, इसलिए उनको वो आर्मी भी ज्वाइन करा रहे होंगे. ओके, हु नोज हिज फादर हैज आंसर्ड, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर. हमारे फ्यूचर को कौन लिमिट कर सकता है ना? हमारे भविष्य के गर्त में क्या छिपा हुआ है, हम कितने आगे बढ़ेंगे, कौन बोल सकता है? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट. ये हमारे कर्तव्य के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे कार्यों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना आगे जा सकते हैं. आगे वो बोलते हैं, सदाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड. तो ये बात उन्होंने हमेशा अपने दिमाग में रखी सदाव ने, उनके फादर जो भी उनको कहते थे.
His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. एक जापानीज मॉरल को स्टिक रहते थे उसके फादर, और जापानीज परंपराओं का पूरा वो पालन करते थे, और ना ही उन्होंने कभी अपने बच्चे के साथ कभी भी बहुत ज़्यादा मजाक किया, ना ही उसके साथ वो बहुत ज़्यादा खेले, लेकिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कष्ट उठाए. इनफाइनाइट पेन्स, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड, अनफैदमेबल, जिसकी कोई गिनती नहीं होती. पेन्स यानी कष्ट. सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न. कंसर्न का मतलब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके फादर के जीवन में अगर कुछ था तो वो था सदाव की शिक्षा. सदाव को अच्छी शिक्षा दिलाना है. एंड फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन. तो अपने बच्चे को जो है सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई कराने के लिए, मतलब डॉक्टरी की पूरी पढ़ाई कराने के लिए उन्होंने एक सर्जन बनाने के लिए कहाँ भेजा. जब वो 22 साल के हुए सदाव, उनको जो है कहाँ भेजा, उन्होंने अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा, यूएसए. ही हैड कम बैक एट 30. लगभग 30 साल के वो हुए, 7-8 साल उन्होंने वहाँ पे शिक्षा अर्जित की और वापस वो आए. एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड बीन सदाव बिकम फेमस नॉट ओनली एज ए सर्जन बट एज ए साइंटिस्ट. देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ बोली. और उसके फादर ने, सदाव के फादर ने अपने मरने से पहले, अपने मृत्यु से पहले अपने बेटे को एक बहुत ही काबिल सर्जन बनाया था. एक एक्सपर्ट सर्जन उन्होंने बनाया था, जिनको पूरे जापान में जो है जाना जाता था उस जमाने में. हाँ देखिए 1940s की ये बात है. और इतना ही नहीं, वो एक साइंटिस्ट के तौर पर भी बहुत ज़्यादा जो है फेमस रहे. वो साइंटिस्ट क्यों बोला गया उनको? बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी. क्योंकि वो एक डिस्कवरी करने में लगे थे, एक इन्वेंशन या डिस्कवरी करने में लगे थे, विच वॉज रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन. जो जख्म हमारे जो है ठीक तो हो जाते हैं लेकिन क्लीन नहीं हो पाते ठीक से, है ना, टाके वगैरह लगते हैं. अब देखिए, तो एक डिस्कवरी करने में लगे थे. कौन सी डिस्कवरी वो थी कि जो हमारे वुंड्स होते हैं, जो हमारे जख्म होते हैं, वो एंटायरली क्लीन कैसे होंगे. और इसमें वो बहुत हद तक सफल भी हुए थे. पूरे जापान में इनको पहचाना जाता था. एंड ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स. दूसरी बात ये थी क्योंकि वो एक साइंटिफिक कार्य में लगे हुए थे, इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और वो आर्मी के लिए काम करते थे डॉक्टर सदाव, लेकिन फिर भी उनको जो है आर्मी के साथ बाहर नहीं भेजा गया था. वो एक साइंटिफिक डिस्कवरी कर रहे थे, उस वजह से. ऑल्सो ही न्यू देर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर ए कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली. दूसरा एक रीज़न ये भी था. देखिए 2 रीज़न है. पहला एक साइंटिफिक डिस्कवरी, साइंटिफिक को कार्य में लगे थे. दूसरा कारण ये भी था कि वहाँ के जो जनरल थे, आर्मी के जो सर्वोच्च पद जो होता है जनरल का, जो ओल्ड जनरल जो थे, उनका इलाज चल रहा था. और उनके डॉक्टर कौन थे? फैमिली डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर सदाव थे. तो इस वजह से भी, और वो किसी भी समय जो है उनका ऑपरेशन हो सकता था, सर्जरी उनकी हो सकती थी, तो उस वजह से उनको जापानीज आर्मी के साथ फ्रंट पर, बॉर्डर पर नहीं भेजा गया. ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली. उनकी अभी ट्रीटमेंट चल रही थी. एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाव वॉज बीइंग केप्ट इन जापान. और इस पॉसिबिलिटी के कारण, समझते हैं ना, आर्मी के जनरल, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उनके ऊपर उनकी कोई सर्जरी होने वाली थी, और वो सर्जरी किसके हाथ में थी? डॉक्टर सदाव के हाथ में थी. और इसीलिए उनको अभी फ्रंट पर नहीं भेजा गया था. दूसरा कारण क्या है? वो एक साइंटिफिक डिस्कवरी कर रहे थे. ओके फाइन. सो वी विल go ahead. Now clouds were rising from the ocean now.
अब जैसा कि हम जानते हैं समंदर के किनारे इनका घर है, ठीक है, और ओशन के ऊपर जो है अब बादल आने लगे थे, ठीक, समंदर के ऊपर बादल आने लगे, और बादल के साथ क्या आता है, फॉग भी आता है. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. और ठंडी हवाएं वहां से चल रही थी, लेकिन कुछ दिन से जो है एक अनएक्सपेक्टेड वार्मथ भी वहां पे था. वार्मथ है ना गर्मी, वार्म का मतलब गर्मी भी चल रही थी, लेकिन अभी वहां पे ठंडी हवाएं आ रही थी. सदा वॉच्ड मिस्ट्स, मिस्ट का मतलब होता है फॉग, मिस्ट का मतलब फॉग, मिस्ट मीन्स फॉग, ओके. Sada watched mists hide outlines of a little island near the shore, and then come creeping up the beach below the house. उसने देखा कि जो मिस्ट्स है, जो फॉग है, वो आउटलाइन में सब तरफ, पाइन के पेड़ वगैरह है ना आउटलाइन में उसके लगे घर के. एक इमेजिन करिए उसका घर, हाँ, समंदर के किनारे, पत्थर वाला समंदर है, उसके किनारे जो है उनका घर बना है, और वहां पर फॉग जो है धीरे धीरे इनकी दिशा में जो है क्रीप हो रहा है. क्रीप का मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना. द बीच बिलो द हाउस रेडिंग अराउंड द पाइन्स इन ए फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू. और पाइन्स के पेड़ों को तो फॉग ने घेर ही लिया है, और कुछ ही मिनटों में जो है वो पूरे घर को भी घेर लेगा, है ना. इतना तेजी से फॉग आता है, आपको पता है सापुतारा में आपने फॉगी एटमॉस्फेयर देखा है. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children. और ये जब पूरा फॉग जो है पूरे घर के ऊपर सवार हो जाएगा, पूरे एरिया में आ जाएगा, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो अपने घर में चला जाएगा. हना, उसकी वाइफ जो है उसका इंतज़ार कर रही है अलॉन्ग विथ द टू चिल्ड्रेन. इससे हमको पता चलता है हना उसकी वाइफ है और उसके 2 बच्चे भी हैं, ओके. बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन. उसी समय क्या हुआ, दरवाजा खुला. एंड सी लुक्ड आउट. हना ने बाहर देखा. अ डार्क ब्लू वुलन हौरी ओवर हर किमोनो. किमोनो एक टाइप का ड्रेस होता है, और अपने किमोनो ड्रेस के ऊपर उसने एक डार्क ब्लू वुलन हौरी पहनी थी. हौरी क्या है हम देखते हैं. ये देखिए यहाँ पे, ये हौरी है, ये ड्रेस, इसको हना मान लीजिए आप, ओके. छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों के, हाँ, ज़्यादा ओल्ड नहीं हो डॉक्टर सदा. और हौरी क्या है, अ लार्ज आउटर गारमेंट, एक आउटर गारमेंट उसने पहना है जिसमें जो स्लीव्स होते हैं ना, बहुत ऐसे खुले होते हैं स्लीव्स, ओके. ये पूरे वर्ड के मीनिंग मैंने लिख कर आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है, आगे देखिए. एक हाउरी, वुलन का हाउरी ऊपर उसने पहना है ठंड की वजह से, और किमोनो एक जापानीज ड्रेस है, ओके. सी केम टू हिम अफेक्शनेटली. जैसी डॉक्टर सदाव अंदर आए, वो उनके करीब गई. एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज, और अपने हाथों से उनको जो है लपेट लिया. एज ही स्टूड स्माइल्ड एंड सेड नथिंग. और हंसने लगी, कुछ भी बोल नहीं रही है. ही हैड मेट हना. अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चली जाती है स्टोरी कि हना से उनकी मुलाकात कैसे हुई. यंग है दोनों. ही हैड मेट हना इन अमेरिका. कहाँ पे मिली थी हना उनको, अमेरिका में. बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज. ये जापानीज रिस्ट्रिक्शंस थे उनको, उसके फादर बड़े स्ट्रिक्ट थे इसके बारे में. तो वो तब तक, वो मतलब मंगोलियन तो लग रही थी, मंगोलियन लोग होते हैं ना, तो वो लग रही थी, लेकिन वो प्योर जापानीज है, उसी के कास्ट को बिलोंग करती है, उसके क्रीड को बिलोंग करती है. ये समझने के लिए उनको बड़ा समय लगा. हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस. रेस का मतलब होता है यहाँ पे, है ना, खानदान, उसको बोलते रेस.
तो उसको पता था कि उसके फादर उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसको, हैना को, जब तक वो ये पता नहीं कर लेते, जब तक वो मान नहीं लेते कि वो प्योर रेस की है। प्योर रेस की है मतलब उस जमाने में, है ना, ये सारी चीज़ें चलती थी, आज भी चलती है। आप देखिए कई सारे कम्युनिटीज़ में, तो उसके फादर उसको तब तक जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक वो मान नहीं लेंगे कि वो उसी के क्रीड को बिलोंग करती है, कास्ट को बिलोंग करती है। ही वंडर्ड often whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance literally, at an American professor's house. और हमेशा डॉक्टर सदावे सोचते हैं कि उनकी इतनी सुंदर वाइफ है हैना, उनको मिली है, इतने स्ट्रिक्ट जो है उसके घर में अपने कास्ट के मॉरल्स को फॉलो करने वाले उसके फादर थे, फिर भी हना जैसी इतनी सुंदर लड़की उनको मिली। तो वो हमेशा ये सोचते हैं कि इतनी इजीली, इतनी कैजुअल वे में हना से उनकी कैसे मुलाकात हो गई, और अगर हना से उनकी शादी नहीं होती तो न जाने किससे उसकी शादी, उनकी शादी हो जाती। और वो जब सोचते हैं तो उनको समझ में आता है कि बाय चांस, लिटरली, लिटरली बाय चांस, समझते हैं ना, बाय चांस मतलब लकीली उनको वो मिली कहाँ पर, एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस। ठीक है, अमेरिकन प्रोफेसर वो एक वहाँ पर थे जो इनका ख्याल ख्याल रखते थे, इन एशियन स्टूडेंट्स का, मान लीजिए, हो सकता है इनको पढ़ाते होंगे। ठीक। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंशियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। तो ये जो अमेरिकन प्रोफेसर थे और उनकी जो वाइफ थी, जिनके घर में ये दोनों मिले थे, कौन, डॉक्टर सदा और हैना, तो वो बड़े ही अच्छे लोग थे, बड़े ही काइंड लोग थे। और वो जो है, दे आर वेरी एंशियस, दे आर वेरी मच यू सी केयरिंग, एंड बड़े उत्सुक थे। किस लिए उत्सुक थे, इन बच्चों के लिए कुछ वो करना चाहते थे, इनकी देखभाल। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस। और बच्चे ये सारे काइंडनेस और वो पूरे क्लोजनेस की वजह से बड़े बोर हो जाते थे, क्योंकि स्वच्छंद होते थोड़े, नए नए बच्चे पढ़ने के लिए अमेरिका गए हैं, खुल के जो है वो जीवन अपना जीना जीना चाहते हैं, लेकिन इनके केयरिंग से वो बोर भी हो जाते थे। लेकिन उनकी काइंडनेस एकदम रियल थी और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। काइंडनेस है ना, दया की भावना, है ना, अच्छी भावना दूसरों के प्रति, सिंपैथी, एम्पैथी, इम्पैथी, एक्सेट्रा। So Sadav had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. देखिए उस नाइट की बात कर रहे हैं जिस नाइट इन्होंने अपना प्रपोजल शादी का प्रोफेसर हार्ले के घर में हैना के साथ रखा था। और हमेशा जो है डॉक्टर सदाव हैना को बताते हैं कि कैसे उस रात मैं वहाँ आने वाला नहीं था, कैसे उस रात मैं बिल्कुल नियरली जो है वहाँ आने वाला नहीं था। द रूम्स यू सी वेयर सो स्मॉल, उनके घर के रूम्स जो है बड़े छोटे छोटे थे। द फूड वॉज सो बैड, और वो खाना भी बहुत अच्छा नहीं बनाते थे अमेरिका के लोग। देखिए आप, अमेरिकन खाने की पद्धति और जापानीज खाने की पद्धति आप बोलेंगे ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो उनका वहाँ का खाना भी उनको पसंद नहीं आता था। एंड द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, वॉल्यूबल का मतलब होता है अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, उसको बोलते हैं वॉल्यूबल। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बात करता है, नया शब्द होगा आपके लिए, लेकिन वॉल्यूम, वॉल्यूबल, है ना। तो वो ज़्यादा उनको पसंद नहीं करता था, लेकिन हना के कारण वो वहाँ गया। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हैना, लेकिन वो वहाँ जा गए और उस रात उनको वहाँ कौन मिली, हैना मिली। अ न्यू स्टूडेंट एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वेयर एट ऑल पॉसिबल। और हैना को जैसे होता है ना लव एट फर्स्ट साइट, ऐसा कुछ हैना के साथ डॉक्टर सदाव को हुआ। और अपना फादर का डर तो उनके मन में था ही, तो उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, पूरा जांचा परखा कि हैना जो है एक्चुअल में जापानीज ब्रीड की है और इन्हीं के कास्ट को बिलोंग करती है ना, वहाँ की कोई कास्ट सिस्टम पर्टिकुलर होगी। और उन्होंने जो है बाद में उनके प्यार में गिरे, प्यार में पड़े, दे फॉल इन लव विथ ईच अदर एंड दे ऑल्सो गॉट मैरिड।
नाउ ही फेल्ट हर हैंड, अब फ्लैशबैक से वापस आ रहे हैं हम इस पैराग्राफ में. नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म. डॉक्टर सदाव ने उसके हैना के हाथों को महसूस किया, अपने हाथों के ऊपर. एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, और बड़ा आनंद उसको आ रहा है. इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रेन. आज भी वो दोनों एक दूसरे को उतनी पसंद करते हैं, एक दूसरे का साथ दोनों को उतना ही पसंद है. उनके 2 बच्चे हो गए हैं, कई साल उनके मैरिज को हो गए होंगे, लेकिन आज भी दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह और प्रेम का भाव रखते हैं. ये इस लाइन का मतलब है. फॉर दे हैड नॉट मैरिड हिडलेसली इन अमेरिका. हिडलेसली का मतलब होता है विदाउट एनी एम, हिडलेसली. क्योंकि उनकी जो मैरिज हुई है वो बड़े कष्ट में मैरिज हुई है, बिना कारण के मैरिज नहीं हुई है. वो दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, दोनों ने एक दूसरे को चाहा, उन्होंने देखा कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तभी जाकर उनकी मैरिज हुई. ऐसा एकदम से वो अरेंज मैरिज जैसी नहीं थी. दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान. अपना कार्य उन्होंने वहाँ पे फिनिश किया, अपना स्कूल की पढ़ाई वहाँ पे फिनिश की, और वो जापान वापस आए. एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, ऑल्दो सदाव एंड हैना had talked everything over beforehand. हना और सना ने सदा और हना ने जो है सब कुछ डिसाइड कर लिया था, अपने फादर को सारी की सारी बातें बताई, लेकिन ओल्ड जापानीज पद्धति से ही जो उनका विवाह संपन्न हुआ. दे वर परफेक्टली हैप्पी, एंड नाउ परफेक्टली हैप्पी थे. दे वर वेरी मच हैप्पी इन ईच अदर्स आर्म्स, यू सी, विथ ईच अदर. सी लेड हर चिक अगेंस्ट हिज आर्म. और इतना ही नहीं, हेना ने न सिर्फ उनको अपने बाहों में लिया, बल्कि सी लेड हर चिक अगेंस्ट हिज आर्म. देन व्हाट हैपेंड? नाउ इट वाज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट्स. वही वो समय था जिस समय डॉक्टर सदाव और हैना दोनों ने देखा कि कुछ तो भी ब्लैकिश इमेज वो मिस्ट से, फॉग से उनके तरफ आती हुई उनको नजर आई. क्या था वो? इट वॉज ए मैन. इट वॉज ए मैन. वो एक आदमी था. वो एक आदमी था. इट वॉज ए मैन. ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन. यस, फ्लंग यानी फेंक दिया था. लहरों ने उसको, वो समंदर में कूदा होगा और लहरों ने उसको बिल्कुल किनारे पर फेंक दिया था. फ्लिंग का ये फॉर्म है, हाँ समझिए, फ्लंग. यस, फ्लंग. ओशन ने उसको फ्लंग कर दिया था, फेंक दिया था बाहर. इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था. टू हिज फीट बाय ए ब्रेकर. ब्रेकर होता है समंदर की लहर को बोलते हैं ब्रेकर. हाँ, मैंने वर्ड के मीनिंग में भी लिखा है, आप पूरा देख लेना. ब्रेकर. ही स्टैगर्ड ए फ्यू स्टेप्स. वो जैसे ही बाहर आया वो व्यक्ति थोड़ी देर तक चला. स्टैगर्ड, डिफिकल्टी इन वॉकिंग उसको बोलते हैं स्टैगरिंग. उसको क्या बोलते हैं? स्टैगरिंग. देखिए, डिफिकल्टी इन टॉकिंग उसको बोलते हैं स्टैमरिंग, हकलाना, और डिफिकल्टी इन वॉकिंग दैट इज स्टैगरिंग. ओके, तो ही स्टैगर्ड फॉर ए व्हाइल, अ फ्यू स्टेप्स. हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट. और उसकी बॉडी जो है एकदम वो मिस्ट में उभर के आ रही थी, वो फॉग में जो है आउटलाइन हो रही थी, बाहर दिख रही थी. हिज आर्म्स अबाउ हिज हेड. और उसके जो हाथ थे अबाउ हिज हेड, उसके सिर के ऊपर उसने पकड़े थे. देन ही कर्ल्ड मिस्ट्स हिड हिम. देन द कर्ल मिस्ट्स हिड हिम अगेन. जो कर्ल का मतलब बहता हुआ, कर्ल का मतलब ऐसे जिगजैग मोड में बह रहा है फॉग, तो वो फॉग में जो है और एक बार वो छिप गया. हना ने कहा, हु इज दैट? हैना क्राइड. हैना जोर से चिल्लाई, अरे वो देखो कौन है. शी ड्रॉप्ड सदाउ's arm and they both leaned over the railing of the veranda. अपने वेरांडा में दौड़ के, अपने घर के अंदर से वेरांडा में दौड़ के हुए आए
और वेरांडा के रेलिंग से वो झुके और देखने की कोशिश की करीब से कि वो कौन आ रहा है। एकदम ज़्यादा दूर नहीं था, वो पास ही में था। नाउ दे सॉ हिम अगेन, फिर से एक बार उन्होंने उसको देख लिया। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग। अब उन्होंने देखा वो आदमी नीचे गिर चुका था, नीचे पड़ा था और अपने हाथों के और घुटनों के सहारे वो आगे आगे आने की कोशिश कर रहा था। नाउ दे सॉ हिम अगेन, द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग। क्रॉलिंग समझते ना, आगे बढ़ना। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर। उसके बाद उन्होंने देखा वो आदमी सामने आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और थोड़ी देर के बाद वो अपने फेस के बल, मुंह के बल नीचे गिर गया। समझ रहे ना स्टोरी? देखिए कितना सुंदर राइटर ने जो है इसका सेटिंग किया है। एडिटिंग देखिए, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन किस तरीके से, सुंदर तरीके से हमारे सामने उसको पेश किया है। ऐसा लाइव ऐसा लगता है। अ फिशरमैन परहैप्स, सदाओ सेड। सदाओ ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है कोई फिशरमैन हो। समझते ना, फिशरमैन, फिश पकड़ने वाले। वॉच्ड फ्रॉम हिज बोट, हो सकता है बोट से अपने गिर गया होगा और बहकर यहाँ पर आ गया। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हेना केम। वो दौड़ा कोने देखने के लिए। आफ्टर ऑल उसके आंगन में सब हो रहा है ना बिल्कुल पास में। और हैना भी दौड़ी उसके पीछे। हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, और उसने जो वो हाउरी पहना है ना, तो उसके जो वाइड स्लीव्स है, ऐसे बड़े बड़े, आजकल ये फैशन भी लड़कियों का आ गया है ना, इंडिया में भी आ गया है ऐसे बड़े बड़े स्लीव्स वाला ड्रेस। तो उसके जो स्लीव्स है वो फ्लाई हो रहे थे, वो भाग रही थी, दौड़ रही थी कोने देखने के लिए। A mile or two away, on either side, there were fishing villages, but there here was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks. वहाँ से लगभग 1-2 मील दूर कुछ फिशिंग विलेजेस थे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं था। सदाओं के घर के अलावा इस कोस्ट पर कुछ भी नहीं था। दैट वॉज द ओनली हाउस देयर। Somehow the man had managed to come through them. किसी तरीके से न जाने, हाँ, द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विथ रॉक्स। और इस जो सर्फ दिख रहा है, ये जो लहरें दिख रही है, ये जो बबल्स दिख रहे हैं, ये जो ईब और फ्लो दिख रहा है समंदर का, लहरें दिख रही है, इसके पीछे जो रॉक्स है, समंदर के अंदर के जो रॉक्स है, अपने गोवा के बीचेस वगैरह देखे होंगे, रॉकी बीचेस है, तो बड़े स्पाइक्ड बीचेस है वो। स्पाइक का मतलब होता है नुकीले। और ये आदमी जो है, व्यक्ति, ये जो कोई भी है, ये न जाने उन आ, उसको पार करके यहाँ तक कैसे आया होगा। नाउ समहाउ द मैन हैड मैनेज्ड टू कम थ्रू देम, ही मस्ट बी बैडली टॉर्न। टॉर्न ने, बैडली टॉर्न का मतलब यहाँ पे बैडली वुंडेड, बैडली वुंडेड, वुंडेड है जख्मी, बहुत खतरनाक वो जख्मी हो गया होगा। They saw when they came towards him that indeed it was so. Indeed मतलब truly। जैसे ही उसके सामने वो आए, उन्होंने देखा कि बिल्कुल जैसे डॉक्टर सदाव ने अंदाज़ा लगाया था, उन दोनों ने अंदाज़ा लगाया था। He was badly wounded. He was badly wounded. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. और एक तरफ, एक ऐसे नीचे गिरा है ना वो, तो मुंह के बल गिरा है, तो एक तरफ का मुंह उसका जो दिख रहा है, तो वो देख रहा है कि पूरा सैंड उसके चेहरे पर लगा है और ब्लड जो है वो सोख हो चुका है। ब्लड जो है क्या हो चुका है? सोख हो चुका है पूरा। ब्लड जो है पूरा सूख गया, पूरा रेड कलर का उसका चेहरा हो गया है। मतलब ही वॉज बैडली वुंडेड। ही इज वुंडेड, सदाव एक्सक्लेम। सदाव ने कहा कि ये तो बड़ा जख्मी हो गया है। ही मेड हेस्ट टू द मैन हु ले मोशनलेस। मेड हेस्ट, हेस्ट का मतलब जल्दी करना, हेस्ट का मतलब जल्दी करना। वो जल्दी जल्दी उस आदमी के पास गया जो बिल्कुल मोशनलेस वहां पड़ा था, बेहोश, इमोबाइल। हिज फेस इन द सैंड, उसका चेहरा
वो बालू में धंसा था। An old cap stuck to his head soaked with sea water. एक ओल्ड कैप जो है पूरे चेहरे में उसकी चिपकी थी, सॉरी सिर में चिपकी थी। ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, और पूरे कपड़े उसके गीले थे। रैग्स ऑफ गारमेंट समझते ना, रैग्स रैग्स यानी बोरे जैसे कपड़े। सदाव स्टॉप्ड, सदाव ने जैसे ही उसका लुक देखा, उसके कपड़े देखे, उसकी कैप देखी, एकदम से डॉक्टर सदाव रुक गए। हैना एट हिज साइड, हैना भी रुक गई। एंड टर्न द मैन्स हेड, और आदमी के चेहरे को उन्होंने पलटाया। दे सॉ हिज फेस, और उनका उसका चेहरा देखा कि ये कौन है। अ व्हाइट मैन, हैना विस्पर्ड। हैना ने धीरे से कहा, अरे ये तो व्हाइट मैन है। व्हाइट मैन मीन्स अमेरिकन, दे आर जापानीज। एंड कौन है वो? अमेरिकन। देयर एनिमी, वार चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आप समझ रहे हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, अमेरिका के साथ उनकी दुश्मनी है, पेट्रियोटिज्म का सवाल है। सदाव एक डॉक्टर है, ओके। और अचानक से लहरों में उनके घर के सामने कौन आ गया? एक अमेरिकन आया है। और आगे देखिए, और ये वर्सन हो जाता है सिचुएशन। A white man. Yes, it was a white man. The weight cap fell away, and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut. और उसका जो कैप था वो थोड़ा बाजू में गिरा था, हाँ, चिपका नहीं था सिर के ऊपर। वो कैप थोड़ा बाजू में गिरा था, और उसके जो एयर्स थे, बड़े बड़े बाल भी बड़े बड़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से उसको हेयर कट नहीं किया है। And upon his young and tortured face was a rough yellow beard. उसके टॉर्चर्ड फेस के ऊपर, उसके यंग और टॉर्चर, एकदम यंग लड़का था वो, और उसके यंग फेस के ऊपर बड़ा टॉर्चर फेस था। टॉर्चर समझते हैं ना, जख्मी, किसी ने टॉर्चर किया है, मारा पीटा है, मान लीजिए। टॉर्चर्ड फेस के ऊपर एक येलो कलर की बियर्ड थी, है ना। वाइट मैन होते हैं ना, जैसे येलोइश बियर्ड होती है उनकी। ही वॉज अनकॉन्शियस, एकदम अनकॉन्शियस था। अनकॉन्शियस समझते हैं ना, बेहोश। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और उसको कुछ भी एहसास नहीं था कि उसके साथ क्या हो चुका था, उसके साथ क्या हो रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कितना टॉर्चर्ड, कितना मिजरेबल, कितना पीटिएबल कंडीशन में वो है। और हैना और उसके हस्बैंड जो है उनके साथ क्या कर रहे, उसको कुछ भी आइडिया नहीं है। फिर नाउ सदाव रिमेंबर्ड द वुंड। नाउ आप इस सदाव को एकदम से, जो है डॉक्टर है ना वो, तो उनकी वुंड, उसकी वुंड का पता चला। वुंड यानी जख्म, वुंड यानी जख्म होता है। एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगैन टू सर्च फॉर इट। तो उन्होंने तो पहचान लिया कि ये इतना जख्मी है, मतलब कहीं ना कहीं जख्म होगा। और अपने एक्सपर्ट फिंगर्स से, समझते हैं ना, एक्सपर्ट फिंगर्स, डॉक्टर है वो, एक्सपर्ट डॉक्टर है, जापान का सर्जन है। और अपने एक्सपर्ट फिंगर से वो जख्म को ढूंढने लगे। और जैसे ही उनको वो जख्म दिखी, ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच। वो जख्म जो है, अभी तो उसमें से ब्लड नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे इनकी उंगली या हाथ उस जख्म को लगा, उस वुंड को लगा, एकदम से फ्रेश ब्लड फ्लो होने लगा। समझते ना, जो है रक्त का बहाव बहने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, राइट साइड में, कमर के थोड़ा सा ऊपर, मान लीजिए किडनी के आसपास, जहाँ किडनियाँ हमारी होती हैं, लोअर बैक, ऑन द राइट साइड ऑफ द लोअर बैक, Sadav saw that a gun wound had been reopened. गन का वुंड है वहाँ पे, गन का जख्म है। गन का मतलब गोली लगी है वहाँ पे, गोली अंदर ही है। और वो अभी तक तो जो है सोक हो गया है, वो दब गया है, मतलब खून आना बंद हो गया है, और इसी वजह से वो जिंदा है अभी तक। लेकिन जैसे ही सदाव का हाथ वहाँ पर लगा, वो फ्रेश जख्म क्या हो गया, वो रीओपन हो गया। रीओपन समझते हैं ना, वहाँ वो जख्म जो है, छेद है ना वहाँ पे, वो जख्म ओपन हो गया।
द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विथ पाउडर, और जो फ्लैश है आसपास का वो गोली के पाउडर से क्या हो गया है, ब्लैक कलर का हो गया। समझ रहे हैं ना आप, बारूद होता है उसमें गोली में, पूरा ब्लैक हो गया है पूरा आसपास का एरिया, है ना। वो तो फेयर कलर के होते हैं, येलोइश कलर के होते हैं, पूरा एरिया जो है वो ब्लैक हो गया है। बड़ी खतरनाक स्थिति है। द फ्लैश वॉज ब्लैक एंड विथ पाउडर, फ्लैश यानी स्किन। सम टाइम नॉट मेनी डेज एगो द मैन हैड बीन शॉट, और ये अभी अभी की बात है, बहुत दिन पहले नहीं, हो सकता है एक आध दो दिन पहले ये आदमी, इस आदमी को जो है गोली लगी है। एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और उसकी जख्म जो है अभी भी ठीक नहीं हुई। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड, और उसके चांसेस बड़े ही कम हैं, क्योंकि उस जख्म जो है बार बार कुरेदा गया है। क्यों? क्योंकि वो रॉकी जो समंदर है उससे वो बहकर जो है यहाँ पे आया है, और रॉक्स ने जो है ना, पत्थरों ने जो है, वो नुकीले पत्थरों ने जो है उसके जख्म को और खराब कर दिया है। ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग, Hannah whispered again in a solemn voice. Solemn means serious. Whispered means to talk in a very low voice. हैना ने और जोर से कहा, लुक हाउ ही इज ब्लीडिंग। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है यहाँ, देखो कितना रक्त बह रहा है। द मिस्ट स्क्रीन देम नाउ कंप्लीटली, अब मिस्ट जो है थोड़े से क्लियर हो गए थे, फॉग थोड़ा सा क्लियर हो गया था, और वो एकदम से तीनों के तीनों दिख रहे थे। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, और शाम का समय है, रात का समय है, ठीक है, कोई भी वहां पर नहीं आया, शायद रात का समय है। द फिशरमैन हैड गॉन होम, वो फिशरमैन सब घर चले गए होंगे। एंड इवन द चांस बीच कोम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, बीच कोम्बर्स होते हैं साफ सफाई करने वाले, बीच के ऊपर बीचेस का ध्यान रखने वाले, है ना। तो बीच कोम्बर्स भी घर चले गए और फिशरमैन भी घर चल गए, अब कुछ भी कोई भी वहां पर नहीं है। What shall we do with this man? सदाव मटर्ड, सदाव मटर्ड का मतलब होता है मटरिंग, मटरिंग टू टॉक इन ए वेरी लो वॉइस, या अपने आप से बात करना। सदाव ने अपने आप से कहा, अरे आप इस आदमी का हम क्या करेंगे। बट हिज ट्रेन्ड हैंड सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग व्हाट दे कुड दे कुड टू स्टैंच द फियरफुल ब्लीडिंग। स्टैंच का मतलब होता है टू स्टॉप, टू स्टॉप। अब डॉक्टर है ना वो, तो बोलता है अरे सबसे पहले मैं इसके जो ब्लीडिंग हो रहा है बड़ा फियरफुल, उसको तो रोक दूं। तो उसके एक्सपर्ट हैंड्स ने जो है, वो हैंड्स कुछ चाह रहे हैं करना कि उसकी ब्लीडिंग कम से कम मैं रोक दूं, है ना। उसकी जान बचे नहीं बचे वो तो बात की बात है, अब पूरा एपिसोड आगे आएगा, लेकिन अभी फिलहाल उसका जो खून बह रहा है उसको तो मैं रोक दूं। सो ही पैक्ड, देखिए यहाँ पे पूरे वर्ड की मीनिंग लिखे है। He packed the wound with the sea moss that strewed the beach. Strewed का मतलब होता है scattered, strewed यानी scattered, और moss का मतलब होता है वो जो ग्रीन, वो जो ग्रीन मॉस होता है ना, मॉस स्पाइरो वगैरह जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, ग्रीन वनस्पति जो होती है समंदर के अंदर या समंदर के किनारे। तो उन्होंने क्या किया, एक तरीका है वो, है ना, आपके जख्म को जो है ब्लड अगर आ रहा है उसमें से तो रोकने का। द वुंड विद द सी मॉस दैट स्ट्रूड द बीच, जो बीच के ऊपर फैला था सीमॉस, उन्होंने उसको थोड़ा सा उठाया और जख्म के ऊपर लगा दिया। द मैन मोन, जैसे ही उसके जख्म के ऊपर वो लगाया, आदमी थोड़ा सा करहा विथ पेन। मोन विथ पेन का मतलब होता है क्राई विथ पेन। एंड इन हिज स्टूपर, देखिए स्टूपर का मतलब होता है, स्टपर भी बोलते हैं इसको, स्टूपर मीन्स अनकॉन्शियस स्टेट, बेहोशी की अवस्था में वो थोड़ा कराहा। बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन उसकी नींद नहीं खुली, मतलब उसका जो कॉन्शियसनेस वो नहीं आया। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाव सेड, सदाव ने कहा कि सबसे बेस्ट थिंग अभी इसके लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वार प्रिजनर है, एक अमेरिकन सोल्जर है,
समझ रहे ना। और ये अमेरिकन सोल्जर जो है ये इसको जो है वापस समंदर में फेंक देना ही अच्छा है। देखिए यहाँ पे कहीं रेफरेंस आया है। यस, यस, ओके, ओके, आगे आएगा शायद। The best thing that we could do would be to put him back in the sea, सदाव said, answering himself. अपने आप ही को सदाव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब इसका क्या करना है, तो वो बोलते हैं कि इसको समंदर में वापस फेंक देना ही अति उत्तम होगा। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड, अब ब्लीडिंग उसकी रुक गई है। फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड, सदाव उठ के खड़े हुए और उन्होंने अपने शरीर के ऊपर उनके जो सैंड वगैरह लगा था उसको झटका। यस, अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हैना सेड स्टीडीली, हैना भी बिल्कुल फर्म है। हैना ने कहा स्टीडीली, फर्मली कहा कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इनको समंदर में फिर से फेंक देते। बट सी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन एकदम दिल से नहीं बोल रही थी हैना, वो उसके तरफ, बेचारे की तरफ एक जैसे देख रही थी। स्टेयर, घूर के देखना, एक जैसे देखना, टू सी कंटिन्यूसली। इफ वी शेल्टर्ड ए व्हाइट मैन इन अवर हाउस वी वुड बी अरेस्टेड, सदाव ने कहा अगर हम किसी व्हाइट मैन को हम अपने घर में पनाह देते हैं, शेल्टर देते हैं, शरण देते हैं, तो मान के चलो हम अरेस्ट हो जाएंगे। एंड इफ वी टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, सदाव सेड। और सदाव ने यह भी कहा कि अगर इसको हम प्रिजनर समझ लेते हैं और वापस देते हैं जापानीज आर्मी के पास, तब वो जरूर मर जाएगा। तो दो कंडीशन है यहाँ पे, इसको अगर पनाह देते हैं घर में तो हम अरेस्ट हो जाते हैं, और जापानीज आर्मी को दे देते हैं एज ए प्रिजनर इसको, तो ये वहां जरूर मर जाएगा, इसको मार डालेंगे। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हैना सेड। तो सबसे बढ़िया बात तो ये है, सबसे उसके ऊपर दया दिखाना तो यही है आज के अभी के लिए हमारे लिए, वो ये है कि इसको समंदर में वापस फेंक दिया जाए। बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन दोनों में से कोई भी मूव नहीं हुआ। नाइदर ऑफ देम मूव्ड, मूड है ना हिलना। दे वर स्टेरिंग विथ ए क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इनर्ट फिगर, इनर्ट मीन्स मोशनलेस, यू सी। वो दोनों के दोनों बोल तो रहे हैं कि इसको फिर से वापस समंदर में फेंकना है, लेकिन दोनों के दोनों बड़े ही क्यूरियस रिपल्शन से, रिपल्शन का मतलब होता है हेट, रिपल्शन यानी हेट से उनकी तरफ देख रहे हैं। व्हाट इज ही, हैना विस्पर्ड। व्हाट इज ही मतलब ये कौन है, ये कौन हो सकता है। अमेरिकन तो है लेकिन कौन है, मतलब व्हाइट मैन है लेकिन कौन है। तो सैदाव बोलता है, क्योंकि सैदाव लगभग 8 साल अमेरिका में रहा है, तो सैदाव बोलते हैं देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, इसके चेहरे से ये जो है अमेरिकन लग रहा है। ही टुक अप द बैटर्ड कैप, यस देयर ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लेटरिंग। एक बैटर्ड कैप, उसने जो कैप पहनी थी ना, बैटर्ड थी वो। बैटर्ड का मतलब होता है टॉर्न, टूट, खराब सी जो है, वॉर्न आउट, टॉर्न कैप। उसने वो कैप उठाई और कहा, उस पे लिखा था अ सेलर। उसने कहा अरे ये तो एक सेलर है, फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, ये अमेरिकन वॉरशिप का एक सेलर है। लेकिन अभी वो प्रिजनर था, समझते ना, युद्ध बंदी था। जापान के जो सैनिकों ने उसको बंदी बना लिया था, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, एक सेलर है, समझते हैं ना। मतलब अमेरिकन नेवी का एक सदस्य है, वो नेवी कमांडर है। ही स्पेल्ड इट आउट, यूएस नेवी, और कैप के ऊपर लिखा था कुछ, क्या लिखा था, यूएस नेवी, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स नेवी का वो सदस्य था। द मैन वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, और दूसरी बात ये थी कि उसको पकड़ा गया था और वो प्रिजनर ऑफ वॉर था। और अभी उसकी कंडीशन है, कब हुई है, कैसे हुई है, वो जो है
वहाँ से भागा है, वो प्रिजन से भागा है और उसको गोली लगी है पीछे से। समझ रहे हैं आप? ही हैज एस्केप्ड, हैना क्राइड सॉफ्टली। हैना ने कहा अच्छा तो ये प्रिजन से भागा है, अमेरिका से इसको पकड़ के लाए। समझ रहे ना आप? अमेरिकन सोल्जर है वो, युद्ध कैदी। प्रिजनर ऑफ वॉर का मतलब होता है POW, युद्ध कैदी, युद्ध बंदी। ही हैज एस्केप्ड, हैना क्राइड सॉफ्टली, वो जो है बचकर आ गया है। एंड दैट इज वाई ही इज वुंडेड, और इसी वजह से वो जख्मी है। और सदाव ने कहा, सदाव एग्रीड, इन द बैक, उसको गोली लगी है। कहाँ? पीछे, इन द बैक। दे हेजिटेटेड, लुकिंग एट ईच अदर, देन हैना सेड विथ रिजोल्यूशन। उसके किडनी के पास गोली लगी है ना, समझ रहे हैं आप? पीछे से गोली लगी है, आर पार हुई है गोली। फिर दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, हेजिटेट का मतलब हिचकिचाना, दोनों हिचकिचाए, एक दूसरे की तरफ देखा। देन हैना सेड विथ रिजोल्यूशन, लेकिन हैना ने कहा कि नहीं नहीं, हम कोई परेशानी नहीं चाहते। ठीक है, उसने रिजोल्यूशन से कहा, कम, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, क्या हम दोनों मिलकर इसको समंदर के अंदर फेंक सकते हैं? इफ आई एम एबल आर यू, सदाव आस्क्ड, सदाव ने कहा हाँ मैं तो तैयार हूं, अगर मैं तैयार हो जाऊंगा क्या तुम तैयार होगी इसको फेंकने के लिए? हैना सेड नो, बट इफ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन अगर तुम अकेले इसको फेंक सकते हो तो। सदाव हेजिटेटेड अगेन, सदाव फिर से हिचकिचा गया। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, दैट इफ द मैन वेयर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। यहाँ पे देखिए ये शब्द आया होल। होल का मतलब होता है इन गुड फिजिकल कंडीशन। तो सदाव बोलता है, डॉक्टर बोलते हैं, अगर ये अच्छी स्थिति में होता तो नो डाउट, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, मैं इसको अभी पुलिस के हवाले कर देता। लेकिन ये वुंडेड है, ये जख्मी है, तो मेरा धर्म कहता है कि इसको मैं पहले बचाऊं। नाउ आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं उसके प्रति कोई केयर नहीं करता, उसके बारे में सोचता भी नहीं। ही इज माई एनिमी, मैं जानता हूं कि अमेरिकन हमारे एनिमी है, वो मेरा एनिमी है। ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, सारे के सारे अमेरिकन मेरे एनिमी है। एंड ही इज ओनली ए कॉमन फेलो, यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, और ये तो एक कॉमन फेलो है, सारे अमेरिकन मेरे एनिमी है। अब ये तो एक US सोल्जर है, और देखो कितना फुलिश लग रहा है चेहरे से, सीधा साधा भी लग रहा है। बट सिंस ही इज वुंडेड, लेकिन क्योंकि वो जख्मी है तो मुझे सोचना पड़ेगा। यू ऑल्सो कैनॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हैना सेड, देन देर इज ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस। तो हैना कहती है कि अगर तुम, यू ऑल्सो कैनॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, तुम इसको नहीं फेंक सकते, ठीक है, समंदर में वापस। तो बस एक ही पर्याय हमारे सामने बचता है, और वो ये है, देन देर इज ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस। चलो इसको लेकर कहाँ चलते हैं? घर में चलते हैं। सदाव इंक्वायर करता है, सदाव पूछते हैं, बट द सर्वेंट्स, सर्वेंट्स है उनके यहाँ 3 सर्वेंट्स हैं, और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक तो 3-4 महीने का बच्चा है, एक थोड़ा सा बड़ा बेटा है ना, और 2-3 सर्वेंट है, एक कुक है, एक गार्डनर है, और एक केयर टेकर है। ठीक है, 2 लेडीज है, एक जेंट्स है। तो नौकर क्या कहेंगे? तो नौकर क्या कहेंगे और बाकी पूरी बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जो है 1 घंटे का वीडियो दोस्तों हो चुका है। और मैं आशा करता हूँ कि वो पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि लाइन टू लाइन, लाइन बाय लाइन जो है, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू इन डिटेल. So we will see the next part. Next part means part 1 only. Part 1 only tomorrow. In the next video. So thank you so much.